Okay, so good morning, everyone. So we are reading Vyavahaaraatmak Janvaad, Behavior-Centered Conversations by Shri A. Nagraj. It's bilingual version, so Hindi and English. Today on 3rd March, we'll begin from last paragraph of page 133 of the original Hindi book. So the book has, I was looking at it, 142 pages. So we are left with around 9 pages, 10 pages. I guess we'll be able to cover it in the next 5, 6, 7 sessions. So good. Let's go straight away to. So this is where we are, from where we have to begin. So the name of this chapter is Jan Charcha Ki Avashyakta. This is the last chapter, chapter 8, Need of Conversations. And here Babaji in some smaller subheadings has touched upon some points which need to be kept in mind while having conversations. The first point that we discussed, we already covered, is conversations indeed are the foundation of education sanskar or the key to building conducive environment. जन चर्चा ही शिक्षा संस्कार का शिलान्यास या वातावरण का सूत्र. So the title itself highlights that how powerful or how meaningful our day-to-day conversations can be if we realize its importance. Okay, then we can review our conversations, the conversations in which we take part or which we lead, in our families, in our workplaces, and see what is the content of those conversations. Can they be used more powerfully for education, sanskar, and for building conducive environment? Yes, then we discussed all this, whatever Babaji has written in this paragraph. Now, the second one which we are reading, which we again covered, is जन चर्चा में सामाजिक सूत्रों का उद्घाटन, unveiling of societal insights in conversations. We talk about society in conversation. We talk about economics. We talk about global warming. We talk about politics. All these are societal issues. Mostly, when my attention went in this direction, I realized that mostly there are complaints when we are talking about these things, or there are inevitable disputes or conflicts whenever such discussions start. One party feels strongly in one direction, and the other party, the other person in the conversation, he or she believes strongly, they have a view which is quite opposite to the view of the first person. Okay. So eventually, after the conversation is over, there are no insights which any party has. Okay. On the contrary, whatever good feelings were there, whatever friendly or brotherly feelings were there in the beginning of the discussions, they also get upset many times. Have we felt that in our discussions, day-to-day discussions? Have we observed it? Yes, Bhaiya. जी भैया. So can the conversations actually lead to insights? Okay, and then insights can be anything. In this section, Babaji is talking about societal insights. So this also we covered, and now we are reading this जन चर्चा में सह अस्तित्व की अपेक्षा, expectation of clarity about coexistence in conversations. Okay, so is there struggle in coexistence, or is there coexistence, around us, in this existence? Okay, can this be also be part of conversation? So this title itself opens a lot of thoughts in our mind. Babaji has mentioned something, but then we don't have to limit our thoughts only on these 2 or 3 small paragraphs. Once we realize the importance of this title, like we have enormous potential of having topics of discussions or giving directions to the discussion, as well, realizing the
in the direction of clarity about coexistence. So in this, two paragraphs we read. First paragraph was, जन चर्चा के मूल में एक से अधिक व्यक्ति पत्थर के सामने पूजा करते हैं, झाड़ पत्थर के साथ में करता है, यह सब प्रलाप कहलाता है। इसको रोगी मानसिकता के रूप में पहचाना जाता है। इन इंग्लिश वी ट्रांसलेटेड इट। It has been observed that all the prayers offered to plants, stones, buildings, along with photos and statues, all that is called worship. But otherwise, if the worship angle is removed, then if someone talks to plants or stones, it is called delirium or hysteria. Okay, it is normally associated with mental imbalance. Okay, so this we discussed, and now we continue with that. So this is the point where we are. I thought we'll just little bit recap what we discussed and then we'll begin. तो इसको कौन पढ़ेंगे? This paragraph in Hindi and English. मैं पढ़ता हूँ भैया। जी जी भैया, कृष्ण भाई नमस्ते। नमस्ते भैया। एक रिक्वेस्ट है भैया, if you can please increase the font Oh, size. sorry. Yes. Sorry. हाँ भैया, अब भैया बढ़िया हो गया। जी, मुझे याद करा दिया कीजिए जब मैं हाँ भूल जाऊं तो। हाँ, थैंक यू देव भैया। इससे ये पता चलता है मानव संवाद मानव के साथ ही सार्थक होना पाया जाता है। इसी बीच कुछ ऐसी भी घटना देखी गई है कि जीव जानवरों के साथ भी मानव अपना संभाषण करता है। इस संवाद में स्वयं को बोलना होता है और उसके उत्तर स्वयं ही स्वीकार लेना होता है। इस विधा में ऐसा भी देखा गया है, मानव ने जो कहा उसके आधार पर उत्तर स्वीकारा गया। जैसे तोता, मैना, कुत्ता, बिल्ली, गाय, घोड़ा, बाघ, भालू, सबके साथ मानव अपने संकेतों को प्रसारित करता है। इसके बदले में वह संकेतों के अनुसार अनुकरण कर दिया उसे सार्थक मान लेते हैं। मानव के संकेतों को जीव जानवर ग्रहण करते हैं। निष्कर्ष निकलता है कि सार्थक संवाद मानव मानव के ही साथ कर पाता है। इसे भली प्रकार देखा गया है। दूसरे किसी से सार्थक हो ही नहीं सकता। मानव में यही विशेषता है, समझने और फल परिणाम में एक रूपता आ जाती है। यही समाधान है। समाधान के लिए संपूर्ण जन चर्चा है। All this indicates that conversations are meaningful only among humans. However, some instances of humans talking to animals and birds are also seen. In such cases, the humans who are speaking are themselves interpreting the answer also. It has also been seen that the answer is interpreted based on what has been said by the person. For example, a person sends a signal or message to a parrot, dog, cat, cow, horse, tiger, or deer, and when these animals respond to those signals, it is considered an achievement. It is correct to conclude that animals can read the signals given by humans, but it has been clearly observed that humans can have meaningful discussions only with humans. It is simply not possible to hold meaningful discussions with units of the other three orders. This is a uniqueness only of humans. It leads to consonance in understanding and results. This itself is resolution. It is only for resolution that all human conversations are meant for. Thank you, भैया। बढ़िया भैया। ठीक है, तो जो पहले पैराग्राफ में भी आया था इसके शुरुआत में, है ना, कि पेड़ के सामने, झाड़ के सामने, प्लांट्स के सामने, इन फ्रंट ऑफ स्टोन्स, we are saying something. We will read the actual words here. In this context, it has been observed that all the prayers offered to plants, stones, buildings, along with photos and statues, all this is called worship. So we have seen it, all of us, that when we offer prayers, there are many times, but something which people say also when they are asking for something from the God, like, some wish to come true. So this we see that people are actually talking to
to some statues or some photograph or something. Okay, so this we already discussed. Now Baba is giving another example here. इससे पता चलता है कि मानव संवाद मानव के साथ ही सार्थक होना पाया जाता है. All this indicates that conversations are meaningful only among humans. इसी बीच कुछ ऐसी भी घटना देखी गई कि जीव जानवरों के साथ भी मानव अपना संभाषण करता है. However, some instances of humans talking to animals and birds are also seen. If you go to some Disneyland or some other such place, you will find they are holding some shows where there is a trainer and they give instructions to some eagle or pigeon or sparrow, and that do this, and the bird actually does that. Go there and pick up something. We have actually, all of us have seen these things. So people are talking to, actually we can use the word, they train animals and animals and birds respond to the instructions given by their trainers. Okay, so I think here the indication is in that direction. इसी बीच ऐसी भी घटना देखी गई है कि जीव जानवरों के साथ भी मानव अपना संभाषण करता है. However, some instances of humans talking to animals and birds are also seen. कि इस संवाद में स्वयं को बोलना होता है और उसके उत्तर स्वयं ही स्वीकार लेना होता है. In such cases, the humans who are speaking are themselves interpreting the answer also. इस विधा में ऐसा भी देखा गया कि मानव ने जो कहा उसके आधार पर उत्तर स्वीकारा गया. It has also been seen that the answer is interpreted based on what has been said by the person. मानव ने जो कहा उसके आधार पर उत्तर स्वीकारा गया. ये पढ़ लिया हमने. जैसे तोता, मैना, कुत्ता, बिल्ली, गाय, घोड़ा, बाघ, भालू, सबके साथ मानव अपने संकेतों को प्रसारित करता है. इसके बदले में वह संकेतों के अनुसार अनुकरण कर दिया, उसे सार्थक मान लेते हैं. Okay, so the trainer gives instructions and the bird or animal, they respond according to those instructions. So it is considered कि ये जो है ये अपना सार्थक हो गया. इसको ट्रांसलेशन में कह रहे हैं. For example, a person here, I think we can, in our mind initially we can say the trainer sends a signal or message to a parrot, dog, cat, cow, horse, tiger, or bear. And when these animals respond to those signals, it is considered an achievement. And it is not only in the bird shows or these kind of places. Actually, many times we may have some pets in the home also, and our pets also follow our instructions. Keep quiet, so the dog keeps quiet. Okay, like these kind of things we have all seen. So we say something and the animal or the bird obeys that. इसे हम सार्थक मान लेते हैं. And when these animals respond to these signals, it is considered an achievement. मानव के संकेतों को जीव जानवर ग्रहण करते हैं, ऐसा निष्कर्ष निकलता है. So it is correct to conclude that animals can read the signals given by humans. लेकिन सार्थक संवाद मानव मानव के साथ ही कर पाता है, इसे भली प्रकार देखा गया है. But it has been clearly observed that humans can have meaningful discussions only with humans. दूसरे किसी से सार्थक हो ही नहीं सकता है. It is simply not possible to hold meaningful discussions with units of the other three orders. मानव में यही विशेषता है, समझने और फल परिणाम में एक रूपता आ जाती है, यही समाधान है. This is a uniqueness only of humans. It leads to consonance in understanding and result. This itself is resolution. समाधान के लिए संपूर्ण जन चर्चा है. It is only for resolution that all human conversations are meant for. So in our day-to-day conversations, if we see that the conversations
can we include the concepts of coexistence in our discussion? Okay. Can we, what is worship? What is blind faith? Like these are all topics of discussion. Right now, it is mostly going on in our society based on beliefs. Okay, some people believe in something, some people do not believe in that. We actually have words also, believers and non-believers. Okay, so can we shift from believer or non-believer to actual understanding of coexistence? Okay, so Babaji is not going in his description in this section in the details of coexistence that he has covered everywhere else, at many other places. But the title itself indicates that we can actually, this is what is the message, and we must. That is what will be the meaningful discussions. बताइए, is it okay? Any comments on translation or ये otherwise? वैसे कोएग्जिस्टेंस के बारे में हर जगह चर्चा है, लेकिन Yes. आपकी जो अंडरस्टैंडिंग है थोड़ा हमारे लिए और ज़्यादा क्लैरिटी लाती है। तो थोड़ा सा अगर आप इस पर रख सकें, एग्जैक्टली कोएग्जिस्टेंस को पूरे डायमेंशन में हम कैसे समझ रहे हैं, ओवरऑल ओके कोएग्जिस्टेंस की बात। ओके, तो भैया देखिए, मैं जब देखता हूँ तो व्हेन आई लुक एट कोएग्जिस्टेंस, first of all, the way Babaji has described the absolute truth, the coexistence is absolute truth. Like that is what we can discuss first of all. So that is that all the entities in existence are saturated in the omnipotence. Okay, व्यापक सत्ता में संपृक्त प्रकृति. All the entities in nature. Now, in nature, what is there? In nature, we have two types of realities. One is the material, the matter, and the other is the consciousness. जीवन परमाणु, जीवन एटम. Okay, जिसको हम कॉन्स्टिट्यूशनल कंप्लीटनेस के साथ में रेफर करते हैं. So there are two parts of nature, the material order and the Chaitanya Pad, the consciousness plane. So this is nature. This is saturated in omnipresence, omnipotence. Okay, तो पूरा अस्तित्व, the whole existence, when we visualize that in our eyes, our planet, our solar system, and beyond that galaxy, our galaxy, and then beyond galaxies also, we see that there is a lot of this empty space in which matter is there, and then we see animal and humans, उसमें जो है हमको कॉन्शियसनेस वाला पार्ट में दिखता है. तो दिस इज द कंप्लीट एग्जिस्टेंस, दिस इज द ट्रूथ. ये जो है अपने में जो है हम अपने में देख पाए, इसको बाबा जी ने कोएग्जिस्टेंस कहा है. कोएग्जिस्टेंस क्या? कोएग्जिस्टेंस ऑफ यूनिट्स एंड ओमनीपोटेंस. ठीक है, कोएग्जिस्टेंस इज ऑफ यूनिट्स एंड ओमनीपोटेंस. इसको एब्सोल्यूट ट्रूथ के रूप में बोला. देन इसके बियॉन्ड जब देखते हैं तो बाबा जी ने बीच बीच में ऐसा भी इशारा सा किया, या अपने में भी ये समझ में आता है कि इतने डीप में अगर किसी का ध्यान नहीं भी जाता हो तो प्रैक्टिकल फॉर्म में देखें तो कोएग्जिस्टेंस ऑफ ऑल द फोर ऑर्डर्स ऑन दिस अर्थ, उसको भी हम कोएग्जिस्टेंस के रूप में देख सकते हैं. इसको भी, इफ वी डू नॉट appreciate this coexistence, then we cause imbalance in the nature. So these four orders, they are also in coexistence. They are naturally in coexistence, but because humans have not understood this coexistence, they are disturbing the balance in these four orders. That is why we are seeing so many problems like global warming and resource depletion, pollution, and glaciers melting, species extinction, all these things we are seeing, which are result of the imbalance in four order. And then eventually at the third level, I see coexistence of humans as a society or as a group of people. ठीक है, तो वो भी समझ में आता है. तो पता चलता है कि कोएग्जिस्टेंस एज ए सोसाइटी एंड कोएग्जिस्टेंस एज ए फैमिली आल्सो इज रिक्वायर्ड. है ना, रिक्वायर्ड मींस इट इज आवर डिजायर, एंड द फेलियर टू
to accomplish it is what is one of the main factors of our agonies, our miseries, our sadness, our unhappiness. So first of all, units and omnipotence, unka coexistence, then coexistence as balance in the four orders, and then coexistence of humans as a family and society. इस तरह से भैया coexistence को देख रहे हैं. ये मैं इसको ऐसे में अपने सेट किया. बढ़िया भैया, बहुत बढ़िया. बहुत बढ़िया भैया. तो ये जो है इसको हम डिस्कशन में, चर्चाओं में ला पाए. तो बाबा जी ने इसको एक मुद्दे को यहाँ पर छेड़ा है, बट व्हेन वी आर ऑन टू इट वी कैन ऑलवेज एक्सपेंड ऑन दैट. सो गुड. नेक्स्ट टॉपिक इज जन चर्चा में नेक्स्ट हेडिंग. हाँ जी भैया, कुछ कह रहे हैं? एक छोटा सा भैया मैं बोलना चाह रहा था यहाँ पर, जो बताइए. मुझे ऐसा लग रहा है ये हिंदी का पैराग्राफ वर्सेस इंग्लिश पैराग्राफ थोड़ा सा साइज में बड़ा दिख रहा है मुझे. हाँ, वो आई हैव सीन एक्चुअली भैया कि इंग्लिश आफ्टर इंग्लिश ट्रांसलेशन नंबर ऑफ वर्ड्स और नंबर ऑफ सेंटेंसेस इंक्रीजेस. सो 20%, 30%, 40% बढ़ जाता है. दिस आई हैव सीन. जस्ट वन मोमेंट, गिव मी अ मोमेंट. Sorry, someone came and I had to meet him. जी. सो मैं बस ये सजेस्ट कर रहा था भैया कि जो एक लाइन है यहाँ पर, मानव के संकेतों को जीव जानवर ग्रहण करते हैं. सो यहाँ पे कोई स्पेशल स्ट्रेस नहीं दिया हुआ है. इज बेसिकली स्टेटिंग अ वेरी एविडेंट फैक्ट. तो उसका जो ट्रांसलेशन है भैया, आई एम जस्ट सजेस्टिंग दैट इफ यू कैन डू straight away starting from the word animals only. Animals can read the signals given by humans, or animals read the signals given by humans. One moment. ये वाला जो है, ये इसको कह रहे हैं, जैसे तोता वगैरह जो है, ये सब मानव अपने संकेतों को प्रसारित करता है. इससे नेक्स्ट लाइन जो है भैया, ओके, मानव के इसके संकेतों, नहीं इसके बाद जो पूर्ण विराम के बाद जो शुरू हो रहा है, मानव इसको, के जी यहाँ संकेतों से, को. जी. ओके, वन मोमेंट. सो लेट मी फाइंड द कॉरेस्पॉन्डिंग. आपने लिखा है इट इज करेक्ट टू कंक्लूड. हाँ जी. यस. हाँ, तो मैं कह रहा हूँ कि देखते हैं एनिमल्स वर्ड से ही शुरू कर दिया जाए यदि तो. मानव के संकेतों को जीव जानवर ग्रहण करते हैं, निष्कर्ष निकलता है. एक्चुअल में ना, दिस इज हाउ आई एम रीडिंग इट. ऐसा निष्कर्ष निकलता है कि मानव के संकेतों को जीव जानवर ग्रहण करते हैं. और अच्छा, मैं ऐसे रीड कर रहा हूँ कि मानव के संकेतों को जीव जानवर ग्रहण करते हैं. उसके बाद है कि निष्कर्ष निकलता है कि सार्थक संवाद मानव मानव के साथ ही कर पाता है, क्योंकि की वहां पे लगा हुआ. आई डोंट नो. ओके, दैट आल्सो इज अ गुड इंटरप्रिटेशन. और फिर इसे भली प्रकार से देखा गया है, ये एक सेपरेट सेंटेंस हो गया है ना. जी इसको हमने जी लिखा भी है. जी. इसको कहीं लिखा भी है, इट हैज बीन क्लियरली ऑब्जर्व्ड. Okay, I think what you are saying is, looks better. मानव के संकेतों को जीव जानवर ग्रहण करते हैं. ओके, सो एनिमल्स कैन, ये कह रहे हैं आप, जी. एनिमल्स कैन रीड द सिग्नल्स गिवन बाय ह्यूमंस. इसको फुल स्टॉप लगा दें. देन फुल स्टॉप या जैसे था वो भी चलेगा भी हमें, मतलब इट कैन बी वन बट लाइन इट हैज बीन क्लियरली ऑब्जर्व्ड. तो जी. निष्कर्ष निकलता है को कहाँ डालें फिर? और इसकी जगह बट इट कैन बी क्लियरली कंक्लूडेड.
हाँ वो ठीक रहेगा, है ना, तो ये कर देते हैं। और फिर ऑब्जर्व्ड जो है इसको अलग से लिख दें। इट एनिमल्स कैन रीड द सिग्नल्स गिवन बाय humans. It is correct to conclude that humans can have meaningful discussions only with humans. It has been clearly observed. ऐसा करते हैं। Is it what you had in mind? जी भैया। Animals can read the signals given by humans. मानव के संकेतों को जीव जानवर ग्रहण करते हैं। निष्कर्ष निकलता है कि सार्थक संवाद मानव का मानव के साथ ही हो पाता है। सो इट इज करेक्ट टू कंक्लूड, ओके, that humans can have meaningful discussions only with humans. इसे भली प्रकार देखा गया है। It has been clearly observed. Very good. Thank you भैया। जी भैया। और एक वन मोर थिंग, जस्ट Yes. बिफोर दिस लाइन आपने लिखा है इट इज कंसिडर्ड एन अचीवमेंट, वहां पर हिंदी में शायद सार्थक की बात हो रही है। तो हम्म। तो मैं उसको बस ये कहना सार्थ, चाह रहा हूँ हाँ। कि हाँ कि भैया मुझे लगता है कि जानवर के साथ बातचीत कर पाना जो ह्यूमन बींग्स कर पाते हैं थोड़ा बहुत, वो हम्म अपने आप में अचीवमेंट तो है ही, मुझे ऐसा लगता है। मतलब not in this context but in general it's like some practice happens and then we of are able course, to take of control of certain course, of situations। course, of course। तो यहाँ पर वही शब्द को लिया जाए तो मुझे लगता है बेटर रहेगा, तो सार्थक को ही सार्थक यूज को करें। तो एक मीनिंगफुल बोलते हैं, इसका बिल्कुल फर्स्ट चॉइस जो आता है वो मीनिंगफुल आता है। लेकिन मतलब इट इज कंसिडर्ड मीनिंगफुल विल नॉट मेक ए गुड रीडिंग प्रोबेबली। तो सार्थक को ना कई सेंस में यूज किया, जैसे सफल होना भी कभी कभी सार्थक के रूप में जो है दिखता है। ठीक है, तो मतलब दिस इज कॉन्टेक्स्ट स्पेसिफिक। हम लोगों ने इसको काफी बार ऐसा देखा है कि कई जगह पे सक्सेसफुल भी चल जाता है। फर्स्ट चॉइस इज मीनिंगफुल, इफ मीनिंगफुल डजंट वर्क देन आई लुक एट अदर ऑप्शंस। तो यहाँ पे मीनिंगफुल तो नहीं चलेगा, मेरे को ऐसा लगता है। ठीक है, ठीक है भैया। वेल आप सजेस्ट कीजिए, मतलब आई एम ओपन टू इट कि अचीवमेंट की जगह पे कुछ और लग रहा हो तो। और मतलब मैं आई एम नॉट सजेस्टिंग, आई एम जस्ट शेयरिंग दैट I हम्म would have probably used something like it is considered meaningful। इट इज कंसिडर्ड मीनिंगफुल को फिर समझाएंगे कैसे? हाउ विल वी एक्सप्लेन इट? और which is considered meaningful, like उसी पिछली लाइन में ही डाल दिया। जस्ट वन मोमेंट, वन मोमेंट। Okay, let's hear some other participants also, है ना? मतलब देखिए, पढ़ना तो सबने है, so we can take a जी जी। collective view. Anyone else? It is considered an achievement या it is considered meaningful? बताइए, या some other option. Please, waiting for some feedback. Personally, I don't have any feedback on this. I don't know the Hindi. But otherwise, if you're just reading in English, Spencer, like Yeah. what makes sense? So, are we trying to say that, like, that once we're able to, that animals are able to read our signals and take our commands, that is considered an achievement? Is that Yes. so? Instead of achievement, if we say meaningful, how does it sound? That is considered meaningful, or that is considered an achievement. I mean, achievement would be like the fact that we were able to do it. It's like we, Yes. we succeeded. So it's like an accomplishment. If Yes. that's what Bob was trying to say, then that would be the appropriate word. Meaningful. If you said
it is considered meaningful. I guess it just depends on what then Babaji. if you say meaningful, then how do you explain it? How do you understand it? Meaningful, I would say, okay, that is, so if you say, so the animal, we communicate with the animal, it responds, and that is meaningful, that would mean that it has some purpose, you know, like it's meaningful is typically linked another, like a synonym Yes. of me is purposeful, you know. Yes. So obviously it does, but I'm not sure if that's what Babaji is trying to But communicate. what Babaji is actually trying to say eventually is that purposeful discussions can be had only between humans and humans. Mm-hmm. Yeah. So then with animals, it's considered an accomplishment, you know. Yeah. It's Yeah. or an achievement, or it's a Or कोई or it's useful, but maybe not purposeful. Anyone else? Bhaiya, even I feel accomplishment or achievement is better. Because it's an achievement by the humans. मतलब ऐसे ही लेके चलते हैं अभी देव भाई, फिर बाद में देखते हैं इसको. जी भैया. Okay, I understand your point. You know, these are the challenges which we also face. Like there's a word in Hindi, you know, which has a very good English choice, but sometimes depending on the context, that choice doesn't fit there. Okay, so either we stick to the choice or we try to make it, you know, context specific basis. We can change the word. So here we are changing the word. भैया ऐसा अभी ऐसा लेके चल रहे हैं. जी जी भैया. Just that भैया मतलब it is for me as a normal human being, I don't think if it is considered an achievement, I think it should be considered an achievement. That's what I would imply here. Because या बिल्कुल ठीक है. मतलब इसमें जैसे हिंदी में भी देखें, उसे सार्थक मान लेते हैं या ये सार्थक है. हाँ जी, ये सार्थक नहीं है, लेकिन हाँ अचीवमेंट तो है मेरे लिए कि हाँ मैंने एक कुछ प्रैक्टिस से ये मैं कर पाया. ये मैं कहना चाह रहा था. हाँ, बिल्कुल ठीक है. इट इज कंसिडर्ड एन अचीवमेंट. ठीक है, लेकिन देन व्हाट बाबाजी इज ट्राइंग टू से इज व्हाट वी कंसिडर एन अचीवमेंट, द एक्चुअल अचीवमेंट इज बियॉन्ड दैट. ही इज ट्राइंग टू ड्रॉ आवर अटेंशन टू दैट. ना सिर्फ वो को एग्जिस्टेंस की तरफ जो है वो ध्यान चला जाए. मैं इसको इस तरीके से ओवरऑल कॉन्टेक्स्ट में देख रहा हूँ. जी भैया. ठीक है, अभी रखते हैं इसको, देखेंगे. हाँ जी. गुड, वेरी गुड. आगे बढ़े. इसको कौन पढ़ेंगे, लॉन्ग पैराग्राफ? मैं पढ़ दूं. भैया आई कैन रीड द सॉरी. अच्छा आप पढ़ लीजिए देव भाई. ओके. पढ़िए देव भाई. जन चर्चा में वास्तविकता को परखने की विधि, यथार्थता को उद्घाटित करने की विधि, सत्यता को स्वीकारने की विधि. Ways of verifying the reality, of unveiling the actuality, and of accepting the truth by means of common conversations. मानव संवाद में अध्ययन में वस्तु कैसी है, इस बात को बोध कराने की अपेक्षा स्पष्ट हुई है. मानव जब परस्परता में संवाद अध्ययन कर पाता है, उक्त आशय के अर्थ में ही होना पाया जाता है. यथार्थता, वास्तविकता, सत्यता ही अध्ययन के लिए सर्व मुद्दा है. इन मुद्दों पर जन चर्चा होना अर्थात मानव में परस्परता में संवाद होते आया है. अस्तित्ववादी विधि से वास्तविकता को परखने की अर्थात जांचने की विधि स्पष्ट है. वस्तु कैसी है, इसे अध्ययन गम्य, बोधगम्य, अनुभवगम्य होना ही परखने का मतलब है. क्यों कैसे का उत्तर पाना ही समाधान है. हम संपूर्ण संवाद समाधान के लिए ही करते हैं. व्यापक वस्तु में एक एक वस्तु है, यही मूलतः सह-अस्तित्व है. सह-अस्तित्व में संपूर्ण इकाइयां चार अवस्थाओं में दृष्टबद्ध हैं.
यह पदार्थ अवस्था, प्राण अवस्था, जीव अवस्था, ज्ञान अवस्था के रूप में है। ज्ञान अवस्था में मानव ही यह सब अध्ययन करने के लिए उत्सवित है, प्रयत्नशील है। इन प्रयत्न में संवाद भी एक प्रयत्न है। प्रयत्न का तात्पर्य प्रयोजनों को पहचानने के लिए किया गया कायिक, वाचिक, मानसिक श्रम है। इससे स्पष्ट है कि हम प्रयोजनों को पहचानना ही चाहते हैं। मानव का प्रयोजन जीवन आकांक्षा, मानव आकांक्षा को प्रमाणित करना है। जागृति पूर्वक ही वास्तविकता को हर अवस्था और पदों में पहचाना जाता है। पद चार होना स्पष्ट है: प्राण पद, भ्रांति पद, देव पद, दिव्य पद। इनमें से प्राण पद में पदार्थ और प्राण अवस्था के संयुक्त कार्यकलापों का अध्ययन है। इस अध्ययन में इनकी परस्परता में पूरकता विधि प्रभावशाली रहना पाई जाती है। पूरकता के आधार पर सभी पद प्रतिष्ठा यथास्थिति रूपी अवस्थाएं होना दृष्टव्य हैं। इसी तथ्य के आधार पर वस्तु कैसा है यह बोध होना आवश्यक है। A, a clear need has been felt to explain the reality through human conversations by way of study. This is the intent behind all dialogues and study in mutual human interactions. Actuality, reality, and truth, this is all that needs to be studied. Conversations and dialogues on these topics have always been held in human interactions. By way of coexistentialism, the method of verification of reality is absolutely clear. To make the reality studyable, understandable, and realizable, this is what is meant by verification. To get answers to all whys and hows indeed is resolution. Resolution is the purpose of all conversations that we humans do. All realities are in omnipresence. This indeed is the coexistence. All units in coexistence are apparent as four orders in nature. They are material order, plant order, animal order, and knowledge order. In all these, it is only the humans who are enthusiastic about and making endeavors for studying. Dialogue is but one of these endeavors. Meaning of endeavors is physical, verbal, and mental labor for recognizing the purpose. Thus, it is clear that we humans naturally want to understand purpose. Human purpose is to evidence Jivan aspiration and human aspiration. It is only upon awakening that each reality is recognized as belonging to a specific order and a specific plane. It is clear that there are four planes: physico-chemical plane, delusion plane, godly plane, and divine plane. In physico-chemical realm, study of combined activities of material order and plant order is done. It is found in this study that the way of complementariness is ever effective in their mutual interactions. It is on the basis of their complementariness that establishment of all units in some plane and in some order becomes clear. Based on this fact, it is essential to understand the placement of each entity. Thank you. Thank you, Devbhai. Rather long paragraph. So we'll cover it slowly, completely. जन चर्चा में वास्तविकता को परखने की विधि. Now, when I am reading it in Hindi, there is no comma at this point, but actually speaking, I am putting this comma here. Okay, that's how I'm translating. जन चर्चा में वास्तविकता को परखने की विधि, यथार्थता को उद्घाटित करने की विधि, सत्यता को स्वीकारने की विधि. So, ways of verifying the reality. वास्तविकता को परखना is verifying the reality. यथार्थता को उद्घाटित करना, unveiling the actuality.
एंड सत्यता को स्वीकारना, एक्सेप्टिंग द ट्रूथ। जन चर्चा में ये सब किस में करना है? जन चर्चा में, बाय मीन्स ऑफ कॉमन कन्वर्सेशंस। तो बाय मीन्स ऑफ कॉमन कन्वर्सेशंस we can achieve all this. This is what is being said here in the title. Okay, so now we can read line by line. मानव संवाद में अध्ययन में वस्तु कैसी है, इस बात को बोध कराने की अपेक्षा स्पष्ट हुई है। A clear need has been felt to explain the reality through human conversations by way of study. है ना? अध्ययन के माध्यम से या अध्ययन में, अध्ययन करने से वस्तु कैसी है, इस बात को अध्ययन के माध्यम से इस बात का बोध हो पाए। सो क्लियर नीड हैज बीन फेल्ट टू एक्सप्लेन द रियलिटी थ्रू ह्यूमन कन्वर्सेशंस बाय वे ऑफ स्टडी। मानव जब परस्परता में संवाद अध्ययन कर पाता है, उक्त आशय के अर्थ में ही होना पाया जाता है। This is the intent behind all dialogue and study in mutual human interactions. जितना भी परस्परता में संवाद होता है या मिलजुल कर अध्ययन होता है, like what we are doing, we are studying also, we are engaged in conversations also. So this is the intent behind all dialogues and study in mutual human interactions. यथार्थता, वास्तविकता, सत्यता ही अध्ययन के लिए सर्व मुद्दा है। एक्चुअलिटी, रियलिटी एंड ट्रूथ, दिस इज ऑल दैट नीड्स टू बी स्टडीड। इन मुद्दों पर जन चर्चा होना अर्थात मानव में परस्परता में संवाद होते ही आया है। Conversations and dialogues on these topics have always been held in human interactions. Humans have been exploring what is truth, what is reality. Okay, maybe they have not understood it clearly, but the intention to understand this, the purpose to understand all this, the goal to understand all this has always been there in human tradition. इन मुद्दों पर जड़ चर्चा होता ही आया है। सह अस्तित्ववादी विधि से वास्तविकता को परखने की अर्थात जानने की विधि स्पष्ट है। थोड़ा इसको नेक्स्ट अभी ब्रेक करते हैं नेक्स्ट पैराग्राफ में, सो दैट वी कैन रीड इट। सह अस्तित्ववादी विधि से वास्तविकता को परखने की अर्थात जांचने की विधि स्पष्ट है। By way of coexistentialism, the method of verification of reality is absolutely clear. Okay? सहअस्तित्ववादी विधि मतलब ये जो मध्यस्थ दर्शन का कंटेंट है, in this content how to verify the reality, this method is absolutely clear. This is unambiguous. There is no doubt, no mystery. This is what Babaji is claiming. वस्तु कैसी है, इसे अध्ययन गम्य, बोध गम्य, अनुभव गम्य होना ही परखने का मतलब है। टू मेक द रियलिटी स्टडीएबल, अंडरस्टैंडेबल एंड रियलाइजेबल, दिस इज व्हाट इज मेंट बाय वेरिफिकेशन। When we are verifying something, what do we want to see? That it becomes studyable. I have verified it and you can also verify it. So I have studied it and you can also study it. Understandable is I have understood it and you can also understood it. And realizable means the reality as it is clear to my mind and it can be clear to you also. This is realizable. Okay. So to make the reality studyable, understandable and realizable, this is what is meant by verification. क्यों कैसे का उत्तर पाना ही समाधान है। To get answers to all whys and hows indeed is resolution. Now we can say why and how also, but then I do not know. I just thought that maybe there could be many whys and many hows, so I just added the word all here. To get answers to all whys and hows indeed is resolution. हम संपूर्ण संवाद
समाधान के लिए ही करते हैं। Resolution is the purpose of all conversations that we humans do. व्यापक वस्तु में एक एक वस्तु है, यही मूलतः सह अस्तित्व है। All realities are in omnipresence. व्यापक की जब हम बात करते हैं तो व्यापक इज ओमनी प्रेजेंस, इट इज प्रेजेंट एवरीवेयर। एंड देन देयर इज अनदर वर्ड ओमनीपोटेंस, तो उसको हम सत्ता के लिए यूज कर रहे हैं, है ना? जिसको सर्वशक्तिमान जैसे बोला है ना, तो सर्वशक्तिमान, इट हैज पोटेंशियल, इट हैज पोटेंसी। सो ओमनीपोटेंस मतलब ये वाली शक्ति जो है ये हर जगह के ऊपर है। तो सत्ता इज ओमनीपोटेंस एंड व्यापक इज ओमनी प्रेजेंस। तो व्यापक वस्तु में एक एक वस्तु है, यही मूलतः सह अस्तित्व है। All realities are in omnipresence. This indeed is the coexistence. In the previous paragraph also we discussed it. All units of nature, they are in omnipresence. This is coexistence. सह अस्तित्व में हाँ जी, सत्ता और व्यापक अलग अलग है क्या? सत्ता और व्यापक। तो भैया हाँ, इसको ऐसा कह रहे हैं कि रियलिटी तो एक है, लेकिन उसके किसी किसी एस्पेक्ट की जब हम बात करते हैं तो उस एस्पेक्ट के लिए उसका अलग अलग नाम देते हैं। जैसे कि मैं संजीव चोपड़ा हूं, नो एज संजीव चोपड़ा आई एम वन रियलिटी, ओके। यू मे कॉल मी भैया, ओके। माय डॉटर कॉल्स मी पापा, okay, so I am the same person but in different context. I am to understand me or to talk to me, there are different names. So when we talk about this व्यापक सत्ता, इसके व्यापक वाला एलिमेंट जो है, व्यापक मींस ये हर जगह पर प्रेजेंट है, ये इसका व्यापक वाला सेंस बनता है भैया। तो इसको ओमनी प्रेजेंस बोला, और सत्ता में एक शक्ति वाला एलिमेंट आता है, ठीक है, तो उसको ओमनीपोटेंस बोला। राइट राइट, हाँ। तो जब हम शिविर करते हैं तो शिविर में इसके व्यापक के मैनी डजन्स ऑफ नेम्स वी डिस्कस। यस, आपने किया हुआ है भैया ऐसा शिविर में, ध्यान है ना आपको? यस यस, है ना? तो वो रियलिटी एक ही है, लेकिन इट इज एड्रेस्ड बाय डिफरेंट नेम्स फॉर आवर ओन अंडरस्टैंडिंग ओनली। राइट राइट, डिफरेंट जो उसकी कैरेक्टरिस्टिक्स के आधार पर हम उसको डिफरेंट नाम दे रहे हैं। यस यस, हाँ, बढ़िया इसी एग्जाम्पल। को ही दिस इटसेल्फ इज कॉल्ड नॉलेज, दिस इटसेल्फ इज कॉल्ड ट्रूथ, है ना? ऐसा करके बहुत सारी चीजें जो है वो बोला है। यस, गॉट इट भैया, थैंक यू। सह अस्तित्व में संपूर्ण इकाइयां चार अवस्थाओं में दृष्टव्य है ना? दृष्टव्य है मतलब देखने में आती है, दृष्टि से दृष्टव्य बना है। ये यहाँ पढ़ने, यहाँ टाइपो मिस्टेक है, थोड़ा दृष्टव्य आ गया है, लेकिन इसको जब करेक्टली लिखते हैं तो यहाँ पर जैसे ये यहाँ मैं हाईलाइट कर रहा हूँ, दिस इज इट्स करेक्ट प्रोनाउंसिएशन, दृष्टव्य है ना, देखने में आता है। तो सह अस्तित्व में संपूर्ण इकाइयां चार अवस्थाओं में दृष्टव्य है। All units in coexistence are apparent as four orders in nature. यह पदार्थ अवस्था, प्राण अवस्था, जीव अवस्था और ज्ञान अवस्था के रूप में है। They are material order, plant order, animal order and knowledge order. ज्ञान अवस्था में मानव ही यह सब अध्ययन करने के लिए उत्सवित है, प्रयत्नशील है। In all these, it is only the humans who are enthusiastic about and making endeavors for studying. Other three orders are not doing this. This is the uniqueness of humans. ये जो है, this we have discussed earlier also, and this is another thing which can be, I think, very easily it needs to be brought in discussions. We in the process of growing up,
We heard, and then whenever children are growing up, it comes in conversations with them also, that humans are the most developed or evolved unit on this earth. Now, how do we justify it? How do we logically say that humans are the most developed units on this earth? There has to be logical reasoning. So the point is, humans are most developed because they want to understand the whole existence and have the potential to understand the whole existence. The other three orders do not have this potential. Animals cannot understand the whole existence. There is no evidence that they are making such efforts. Okay, this we have discussed earlier in Shivers also and in these sessions also. तो ये जो है ज्ञानावस्था में मानव ही यह सब अध्ययन करने के लिए उत्सवित है, प्रयत्नशील है. In all these, it is only the humans who are enthusiastic about and making endeavors for study. इन प्रयत्न में संवाद भी एक प्रयत्न है. Okay, dialogue is but one of these endeavors. Okay, this is one of the ways in which we try to understand. प्रयत्न का तात्पर्य प्रयोजनों को पहचानने के लिए किया गया कायिक वाचिक मानसिक श्रम है. Meaning of endeavors is physical, verbal, and mental labor for recognizing the purpose. This is what prayatna or prayas is. An endeavor. Initially there can be a doubt when we are doing the translation that prayatna ke liye we can use a word effort also. And dialogue is but one of these efforts. Yeah, one of such efforts. So I'll explain the reasoning behind this. There is a key phrase in Madhyas Darshan which comes Shram Gati Parinam. Okay. तो वो वहां पर जब वो श्रम गति परिणाम आता है तो श्रम को हम एफर्ट कह रहे हैं, because that shram is for everything in nature, not only the humans. लेकिन उसके translation में effort word has been sort of reserved there as shram gati parinam में. Okay, so we sort of hesitate in using effort in other contexts. That is what I want to say. So then the next best choice we felt was जब भी ये प्रयास या प्रयत्न आएगा तो we will use the word endeavors. The meaning of endeavors is physical, verbal, and mental labor for recognizing the purpose. What is our purpose? ये हमको क्लियर हो जाए. इससे स्पष्ट है कि हम प्रयोजनों को पहचानना ही चाहते हैं. Thus, it is clear that we humans naturally want to understand purpose. मानव का प्रयोजन जीवन आकांक्षा मानवाकांक्षा को प्रमाणित करना है. Human purpose is to evidence जीवन aspiration and human aspiration. This is the human purpose. ऐसा this is a proposal from Madhyas Darshan. और अपने को भी जब हमने when we considered that, when we verified that, we realized that yes, this is what is my purpose also. It is just that in all my education and in all my upbringing, it was not clear to me or it was not made clear to me. Okay, so we can verify this. जागृति पूर्वक ही वास्तविकता को हर अवस्था और पदों में पहचाना जाता है. It is only upon awakening that each reality is recognized as belonging to a specific order and a specific plane. Okay, 4 अवस्था और 4 पद. So 4 अवस्था या 4 orders, that is already clear to us and we have discussed it many times. Material order, plant order, animal order and humans or knowledge order. अभी ये 4 पद जो है ये भी मध्यस्थ दर्शन में बार बार आते हैं. तो पद के लिए हम लोगों ने वर्ड जो है 4 planes or 4 reals. That also depends on context. Sometimes we are using real. I'm writing it here so that we understand it. Okay, so depending on the context, whatever reads better, we use that. Here we are using
4 planes. What are these 4 planes? Physico-chemical plane, delusion plane, godly plane and divine plane. ये 4 पद है. पद 4 होना स्पष्ट है. प्राण पद, भ्रांति पद, देव पद और दिव्य पद. I think that if you want, we can shift to a slide and we can look at them in a little detail. देव भाई आप बताइए कैसा सजेस्ट कर रहे हैं, बाकी साथी बताएं. जी भैया, बढ़िया रहेगा. Yes, भैया, it will be good to It will be revise. good, है ना. तो हम ये Yeah. चारों है ना, चारों अवस्थाएं, 4 orders are clear to all of us. 4 पद जो है ना, maybe we need to revise it a little bit. So let us just complete this paragraph and then we'll move to the slide. So there are 4 planes. ये 4 पद हैं. प्राण पद, भ्रांति पद, देव पद और दिव्य पद. इसको ट्रांसलेशन में बोल रहे हैं. These 4 planes are physico-chemical plane, delusion plane, godly plane and divine plane. इनमें से प्राण पद में पदार्थ और प्राण अवस्था के संयुक्त कार्यकलापों का अध्ययन है. प्राण पद में मेटीरियल ऑर्डर एंड प्लांट ऑर्डर, ओके, दैट इज स्टडीड. तो इसको लिख रहे हैं. इन फिजिको-केमिकल रियल्म स्टडी ऑफ कंबाइंड एक्टिविटीज ऑफ मेटीरियल ऑर्डर एंड प्लांट ऑर्डर इज डन. इस अध्ययन में इनकी परस्परता में पूरकता विधि प्रभावशाली रहना पाई जाती है. It is found in this study that the way of complementariness is ever effective in their mutual interactions. Okay, complementariness is always there. Okay, like परस्पर पूरक हैं ये पदार्थ अवस्था और प्राण अवस्था. यथास्थिति पूरकता के आधार पर सभी पद प्रतिष्ठा यथास्थिति रूपी अवस्थाएं होना दृष्टव्य है. It is on the basis of their complementariness that establishment of all units in some plane and in some order becomes clear. Based on this fact, it is essential to understand the placement of each entity. Like where does an entity belong, in which plane, in which order? Okay, this is what emerges after understanding, okay, after knowledge, after awakening. Okay, we can place each entity in a specific plane, in a specific order. इसको हम देख पाते हैं. तो ऐसा करके जो है ये रह गया, ये किया हमने. नाउ 4 प्लेन्स, 4 पद. इसको जो है ना, आई थिंक इट्स एन इम्पोर्टेंट कॉन्सेप्ट एंड वी विल स्पेंड सम टाइम ऑन दैट. आई विल स्टॉप शेयरिंग दिस एंड वी गो टू. Okay, so I see Divya is also there. Divya, good evening. Morning, sir. Good morning, good I was- morning and सही टाइम Good. पर आए जब दिव्य पद हम लोग डिस्कस करने वाले हैं. अच्छा. और दिव्य पद मुझे याद आ गया था. दिव्य नहीं, पद, मैं ठीक. था सर, बट वो ऑन द वे था. अभी जस्ट आई रीच्ड होम. ठीक है. One moment. So let me open it and yes, it is there. Okay. Now this is a slide which Babaji has made. Okay. Now explanation I will do, so I will make some notes here. This is the original Hindi slide. Okay, अस्तित्व में परमाणु का विकास, ऐसा करके बोल रहे हैं. Development of atom in existence. Right. So here the 3 circles, there are 3 arrows. So if we see, there are 4 regions actually. The bottom circle, then the one above that, the one above that, and then on the top there is no circle, but that also is a plane. So we have these 4 planes, है ना. तो सबसे नीचे वाला है उसको प्राण पद कह रहे हैं, फिर सेकंड वाले को भ्रांत पद कह रहे हैं, तीसरे वाले को देव पद कह रहे हैं, साथ में चक्र शब्द भी लिखा हुआ है, एंड सबसे ऊपर वाले को दिव्य पद कह रहे हैं. This slide is interesting. And then there are 3 transcendence points. संक्रमण बिंदु. तो विकास जब बोला, डेवलपमेंट कह रहे हैं ऊपर, तो डेवलपमेंट में just at the bottom circle when we are seeing, which is pran pad chakra or physico-chemical plane, material order and plant order, that is in a cycle.
in the sense that plants are made up of material, and then when they decompose, they become material itself again. Okay, so material to plants, plants to material, material to plants, plants to material. This is a cycle which continues. That is the bottom circle. Then the first sankraman, or in English, which we are saying transcendence. So ascendance is vikas, going to the next stage. Transcendence is going to his next stage in such a manner that you cannot come back. The nature doesn't allow to come back. Okay, it's a permanent promotion to the next level. So when a material atom, the atoms which we see in the periodic table, when they transform or change their constitution and become a conscious entity, get converted into a Jivan atom, that is being called the first transcendence. Okay, pehla sankraman bindu. So once, if a physical atom, material atom, transforms or transcends to conscious level, the Jivan atom, there is no provision in nature, in existence, for it to again become a physical atom. Okay? It remains a Jivan atom, although it may be diluted. ठीक है, तो अभी फर्स्ट वाले सर्कल में डिल्यूटेड प्लेन है. देन फर्स्ट वाला मतलब प्राण पद के बाद वाला, उसके ऊपर वाला जो है वो देव पद चक्र है. दैट इज आफ्टर अवेकनिंग. आई थिंक आई कैन यूज दीज वर्ड्स आल्सो. नाउ दीज आर एक्सप्लेनेशन. पहला वाला है उसको गठन पूर्णता कह रहे हैं. ओके, दूसरे वाले को जागृति कह रहे हैं, क्रिया पूर्णता. और फिर तीसरे वाले संक्रमण बिंदु को कह रहे हैं जागृति पूर्णता, है ना, आचरण पूर्णता. तो गठन पूर्णता, क्रिया पूर्णता, आचरण पूर्णता, या दूसरे शब्दों में चैतन्य जागृति, जागृति पूर्णता. इस तरह की भाषा जो है अलग अलग पॉइंट्स पे बाबा जी ने यूज की है. What we can do is now we can use the English words also here. So the bottom one is on the right hand side. If we see Pran Pad Chakra, this is the cycle in physico-chemical plane. Okay, now this is material order. Okay, material, plants, animal bodies and human bodies. These are made of the material, and when they decompose, they again become material. Okay, so matter to these and these to matter. This cycle is called Pranapad Chakra. Cycle in physico-chemical plane. Okay, so if we see, let me highlight it also because there is so much content here. ये प्राणपद चक्र मैंने अभी हाईलाइट किया, दिख रहा है स्क्रीन पे देव भाई? जी भैया, जी, है ना. इसी को इंग्लिश में कह रहे हैं साइकिल इन फिजिको-केमिकल प्लेन. तो वहां पर फिजिको-केमिकल प्लेन था, यहाँ कह रहे हैं दिस इज ए साइकिल. ठीक है. सो although it looks like that and that plants are more developed than animals, but there is no permanent development. Okay, plants again become material after plants die. Okay, तो परमाणु का विकास में बाबा जी ने इसको इस तरह से कहा कि विकास जो है वो इवेंचुअली जीवन में ही होता है ना. हमने बिल्डिंग बना दिया, हमने लैपटॉप बना दिया, हमने मोबाइल बना दिया, हमने हवाई जहाज बना दिया, स्पेस शटल बना दिया, ये सब हमको विकास लगता है. बट ऑल ऑफ दिस इज इन दिस साइकिल ऑफ फिजिको केमिकल प्लेन. All these things are made of material and they will eventually become material. So there is no stability in this development. It is only every unit may look developed, but only for some time. Okay, so only for some time is development, or permanent development is development. Okay, this is we can deliberate on. So transcendence means ये जो एटम है, जो मटेरियल में, जो पीरियोडिक टेबल में द एलिमेंट्स व्हिच वी सी, दे डेवलप इनटू जीवन एटम. नो, जीवन एटम इज ए परमानेंट डेवलपमेंट. तो इसको संक्रमण बोला.
it does not go back to material stage, but it is still deluded. तो इसमें जब इसको बोल रहे हैं तो इसको कह रहे हैं भ्रांत पद चक्र. इसमें एनिमल्स एंड डिल्यूडेड ह्यूमंस दे आर देयर. सो इसको इंग्लिश में कहा साइकिल इन डिल्यूडेड प्लेन. So it is more developed than the material and plant, but still it is in deluded state. So what will be the next development? Transcendence. Usko bola dev pad chakra. So this is the cycle in godly plane. Okay. This happens after awakening. So here the cycle is between humans and godly humans. मानव और देव मानव के बीच में है ना, ये साइकिल में रहता है. तो you know, once you are in this plane, you do not go back to the deluded plane. इसको हम अपने में भी वेरीफाई कर सकते हैं. All this is verifiable by us. You know, we can see there are certain truths, certain realities, certain sanskar which we accept. You know, then we are not able to compromise on that. We are not able to negotiate on that. Come what may. कुछ भी हो जाए हम उससे नेगोशिएट नहीं करते हैं, उसमें कंप्रोमाइज नहीं करते हैं, उसमें समझौता नहीं करते. राइट. सो वी डू नॉट रिवर्ट बैक to the mistakes which maybe other people are making, but we decide that no, I will not do this. ठीक है. सो अगर पूरा आचरण वैसा हो जाएगा अवेकनिंग के बाद में, सो उसमें मानव और देव मानव अमानवीयता में वापस नहीं जाएंगे. द ह्यूमन विल नॉट गो बैक टू द डिल्यूडेड प्लेन और द इनह्यूमन प्लेन. Will remain in this cycle of godly plane where humans and godly humans, manav or dev manav. And then the last plane is divya pad. इसमें दिव्य मानव आते हैं. This is being called divine plane. This is not a chakra. This is not a cycle. If you are here, you are just here. There is nothing to proceed forward to, and there is no going back also. So the bottom three are cycles. Here, if you see, the cycle word or the chakra word is missing. Okay, so this is not a chakra. Bottom three, they are cycles or chakra. So this is what I had to say. I'm sure you may have some questions also. कुछ clarity चाहिए हो तो we can talk about it. भैया आई जस्ट वांटेड टू रिवाइज कि जो वो ट्रांसेंडेंस होती है, हाउ डज इट हैपन, वो संक्रमण कैसे होता है? देखिए, ये जो फर्स्ट वाला संक्रमण है ना, द फर्स्ट ट्रांसेंडेंस, दिस हैपेंस इन ए नेचुरल वे. ओके. So I have a body and I am Jivan. So the Jivan atom which is driving my body, I had no role in its making. Okay, so this first transcendence, this happens naturally. Humans have no contribution in this. ओके. तो बाबा जी ने इसको बोला है कि ये अस्तित्व सहज विधि से होता है. दिस हैपेंस बाय कोएग्जिस्टेंशियल मेथड. योग संयोग से होता है, कॉस्मिक रेस से होता है. ऑनेस्टली स्पीकिंग, आई हैव नॉट understood it fully so far, but the truth is it happens. So I am living with that truth. इतना मेरे में सेट है कि ये हो तो जाता है. And what Babaji is saying is that the next to Sankraman, the next to transcendence, that is where human endeavors are required. This will not happen if humans do not make attempts for this. Humans do not make effort for this. ये वाले दोनों जो है ये मानव के मेहनत से होगा. This first one happens by existential method. हाँ, तो वही वो अनुभव से होगा, है ना, जब अनुभव. हाँ, ये ऊपर वाले दोनों जो है, ऊपर वाले दोनों हाँ, जो जब है जीवन क्रिया दसों प्रमाणित हो जाएंगी. यस. यस. या थैंक यू. मतलब मानव भ्रमित भी बहुत मेहनत से ही हुआ है, अस्तित्व की मेहनत से हुआ है. जी. ओके. ह्यूमंस, लाइक इसको एक ऐसा सेंटेंस से बोल सकते हैं कि ह्यूमंस हैव नो रोल फॉर इमर्जेंस ऑफ ह्यूमंस ऑन दिस अर्थ.
Okay, humans emerged on this by natural method, but to become wise, to become awakened, there we have a role, and that is actually our role. यही हमारा काम है. That is our purpose. जी भैया. Any other comments? Any clarifications? All good, भैया. Divya? Sir, just like looking at the diagram only. So for the last step, which is Dev Manav, Dev Pad Chakra, so Divipad is just an outcome of that chakra, or it itself is considered as the fourth step, and there is something which is happening there too. So, like when you will do a shiver or two, then some things will become clear the way. But what we are saying here is, yes, the divine plane or Divya Pad at the top, what is mentioned, that is a step forward from the Dev Pad. Okay. So up to Dev Pad, there is a chakra, there is a cycle. It's very clearly mentioned there also, देवपद चक्र. अगर मैं इसको चक्र. है ना हाईलाइट करता हूं, तो चक्र का क्या मतलब होता है? चक्र का मतलब है देयर इज अपवर्ड मूवमेंट एंड डाउनवर्ड मूवमेंट. ओके, कुछ अप डाउन हो रहा है. देयर इज ए साइकिल. सो व्हाट इज द साइकिल? साइकिल इज ये ऑन इन दिस सर्कल इट इज रिटन मानव और देव मानव. ओके, इसके बीच में साइकिल है. सो ह्यूमेननेस एंड गॉडली ह्यूमेननेस, इनके बीच में एक चक्र चल रहा है ना. इतना आगे पीछे हो सकता है वंस वी रीच हियर, बट ए पर्सन डजंट गो बैक टू डिल्यूडेड प्लेन और इन ह्यूमेननेस वंस दे हैव ट्रांसेंडेड टू दिस प्लेन. एंड देन फाइनली ऑन द डिवाइन प्लेन देयर इज नो साइकिल, यू आर जस्ट देयर. Okay. Okay. Sure, sir. हाँ जी कृष्ण भाई. तो भैया जो हम यहाँ जो सेकंड ट्रांजेक्शन की बात कर रहे हैं, ट्रांसेंडेंस की बात कर रहे हैं, तो जी. यहाँ भ्रांत पद चक्र से देवपद चक्र में यस. ट्रांसेंडेंस हो रहा है. तो जो यस, मतलब मानव जब हम बोल रहे हैं तो वो क्रिया देवपद चक्र भी है. तो देवपद चक्र. वहाँ हम क्रिया पूर्णता की बात कर रहे हैं. यस, क्रिया क्रिया पूर्णता जिसको कह रहे हैं ना एक्टिविटी कंप्लीटनेस, तो ये क्रिया पूर्णता जो है वो जीवन क्रिया जो है ना, उस जीवन क्रिया में 10 क्रिया है. जी जी. राइट. deluded humans, in them only 4.5 activities of the jivan they are activated. Right. So एक्टिविटी कंप्लीटनेस, क्रिया पूर्णता मीन्स एक्टिविटी कंप्लीटनेस. इसका मतलब कि जीवन की 10 क्रिया जो है वो एक्टिवेट हो गई. राइट. तो हम मानव पद में हैं और उसी में ही फिर आगे देव मानव पद तक भी जाने का प्रोविजन जो है वो रहता है. तो भैया हम जब 10 क्रियाओं की बात कर रहे हैं तो उसमें जो हाईएस्ट लेवल है वो अनुभव है, यस. रियलाइजेशन. यस. यस. यानी कि अनुभव हो गया है, रियलाइजेशन हो यस. गया है, देन इट इज इन दिस कैटेगरी. देवपद चक्र में है वो मानव. यस. तब यस. मानव भी हम यस. कभी बोलेंगे. यस. अदरवाइज जो अभी जो हम प्रोसेस में हैं, यस. इसमें भी कहीं कहीं स्टेज है जो भ्रांत मानव और मानव के बीच की कोई स्थिति है. संक्रमण ही बोल रहे हैं क्या हम उसको, नहीं, ट्रांसेंडेंस. उसको संक्रमण नहीं बोल रहे भैया. अगर मानव और देव मानव के कोई बीच की स्थिति है तो उसका यही मतलब है कि अभी मानव पद तक नहीं पहुंचे हैं. संक्रमण काल बोलते हैं भैया उसको. हाँ, तो है ना. तो वी आर मेकिंग एफर्ट्स. मतलब लाइक आई, जैसे समवन गोज टू कॉलेज, सो मतलब आई हैव ग्रेजुएटेड इज वन स्टेटमेंट एंड आई एम डूइंग ग्रेजुएशन इज वन स्टेटमेंट. ठीक है. पर भैया जैसे अब क्रिया पूर्णता हो गई, अनुभव हो गया, यस. तो आचरण पूर्णता तो ऑटोमेटिकली हो जाएगी, क्योंकि आपने. नॉट, नहीं भैया, वो आचरण पूर्णता ना शब्द है. मतलब मुझ में आचरण हो जाएगा, ठीक, दैट इज करेक्ट. लेकिन ये आचरण पूर्णता जो है ना पूरी मानव जाति के कॉन्टेक्स्ट में कह रहे हैं.
नहीं भैया, अगर उस कॉन्टेक्स्ट में होता तो फिर हम बाबा जी को दिव्य पद में कैसे रखते? हाँ, तो इसको भैया वो देखिए, ये थोड़ी सी चीजें जो है वो मैं भी अभी समझ ही रहा हूँ, राइट? तो हाँ, नहीं, अपन बाबा जी को दिव्य पद में रखा भैया, जबकि ये जो अनुभव है बाबा जी को हुआ, पूरी मानव जाति को नहीं हुआ। भैया मैं भी इसको थोड़ा सा समझ रहा हूँ, मतलब मैं नहीं, भी इस चीज की तलाश कर रहा हूँ कि मैं भी भैया बाबा जी ने समझा। अपने को दिव्य पद में रखा है या बाबा जी के फॉलोअर्स ने या स्टूडेंट्स ने बाबा जी को दिव्य पद में रखा है। इट्स अ ओके। वेरी वैलिड पॉइंट भैया, यस, ये दैट्स द पॉइंट। इम्पोर्टेंट यस, ये हमारा इंटरप्रिटेशन भी हो सकता है अगर ऐसे देखें तो। है ना? तो हाँ, और हमने भैया, बाबा जी को शायद दिव्य पद में रखा है, बाबा जी ने अपने आप को सिर्फ अनुभव संपन्नता तक बोला। उनका तो एक डायलॉग है जिसमें उन्होंने कहा, आई हैव ऑक्युपाइड द लीस्ट ब्यूटीफुल सीट्स इन एग्जिस्टेंस इन ह्यूमननेस। आगे का रास्ता तो आप सबके लिए खुला है। यस यस, हाँ, ये मैंने भी कहीं सुना भी पढ़ा है। हाँ हाँ, मैं भी भैया, क्योंकि आपकी समझ थोड़ी सी ज्यादा हमसे, इसलिए क्लियरिटी के लिए पूछ रहा हूँ। नहीं नहीं नहीं, ठीक है, अच्छा अदरवाइज रहता है इस सबसे अदरवाइज हमारे को भी। हाँ बिल्कुल। अदरवाइज वी बिल्कुल। आर को एक्सप्लोरर्स। हाँ। मुझे हाँ पता जी। आप भी एक्सप्लोरेशन में है, बिल्कुल। हम भी एक्सप्लोरेशन में ही। बिल्कुल। तो बिल्कुल। बढ़िया बढ़िया, ठीक है। ठीक है, तो पूरी धरती पर मानवीयता स्थापित हो जाए, मानवीयता की परंपरा बन जाए। हम्म इंग्लिश में भी बोल देता हूं, व्हेन द ट्रेडिशन ऑफ ह्यूमननेस इज एस्टेब्लिश्ड ऑन दिस अर्थ, ओके, हम्म। दैट इज व्हाट वी विल कॉल आचरण पूर्णता या जागृति पूर्णता। राइट राइट। हाँ, बिल्कुल। मतलब एक व्यक्ति में है तो हम उसको क्रियापूर्णता बोल रहे हैं। ये अपूर्णता पूरी कह रहे मानव परंपरा में ये जब आता है हैं। आचरण पूर्णता, जिसमें ये हम्म। जो अनुभव को प्राप्त हैं, वो भी हम्म। उसका प्रयास ही करते हैं, जैसे बाबा जी बिल्कुल। तक प्रयास करते रहे। बिल्कुल। 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 ठीक है है। ना? इसमें अभी मेरे को लगता है कि थोड़ा सा मुझ में भी कंफ्यूजन है, तो मतलब आप इसको मेरे ऐसा भी मत मान के चलिए कि जो मैंने कह दिया ठीक है। नहीं, यू नो, फ्रॉम भैया, अदर डिस्कशंस विद अदर पीपल आल्सो ट्राई टू गेट योर वेरीफाई दिस 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 थिंग। ठीक हाँ, है, मैं अभी इसको अभी भैया एक इसमें, सेंस में ऐसे हाँ, लेकर नहीं, चल रहा अभी इसमें भैया साठ सत्र जब मैंने अटेंड किया था अभी लास्ट, जस्ट हूँ। अटेंड ही किया है, तो गणेश भैया ने रखा था इस बात को। ओके। तो जो अनुभवगामी विधि से फिर अनुभव तक पहुंचे हैं, और हम्म। वापस अनुभव अनुभव यानी कि क्रियापूर्णता, फिर हम्म। वापस प्रमाण, प्रमाण से बोध, बोध से फिर हम्म। संकल्प, संकल्प से हम हम्म। जितनी सारी जो नीचे वापस आ रहे हैं, हम्म। ये उसको उन्होंने थोड़ा आचरण पूर्णता की, मतलब फिर वो व्यवहार, कार्य और भागीदारी, हम्म। भागीदारी के साथ मानवीय परंपरा। तो हम्म। यही उन्होंने, जो आप कनेक्ट कर रहे हो ना, मैं वापस हम्म। कनेक्ट कर पाया हूँ बिल्कुल। कि बिल्कुल। अनुभव के बाद जो वापस ये पूरा प्रोसेस नीचे की तरफ, यानी कि हाँ। सारी जो क्रियाएं उसके अकॉर्डिंग हाँ। सज रही हम्म। हैं, उसको इस तरह से वर्ड हम्म। यूज करते हैं, इस तरह से। हम्म। तो सजने का मतलब वो व्यवहार में भी, कार्य में भी और भागीदारी में भी, हम्म। और उसके बाद पूरी मानवीय परंपरा। तो आपने जब हम्म। ये बात को परंपरा के साथ कनेक्ट किया, और ये आपने हम्म। अच्छा ध्यान दिलाया कि बाबा जी ने ऐसा कहीं नहीं बोला है, ये बिल्कुल मेरा भी ध्यान जा रहा है कि मैंने भी अभी तक कहीं पढ़ा सुना नहीं इसके बारे में। बाबा जी ने बार बार ये कहा है, मैं जागृत मानव हूं, मैं अनुभव संपन्न हूं। है ना? यस। मैं दिव्य पद में हूं, मतलब मेरी ऐसी जानकारी में नहीं आया है ना? नहीं ऑन द कॉन्ट्रेरी, जैसे कहा, ही हैज मेंशन्ड दैट आई हैव ऑक्युपाइड द लीस्ट ब्यूटीफुल सीट्स इन द हाँ, ह्यूमननेस। ये ब्यूटी है डिस्कशन करने की। जी। मैं सार सत्र में इस बात को समझ तो गया, लेकिन पकड़ नहीं पाया, कनेक्ट नहीं कर कोई पाया। नहीं। आपने जब इसको, इसीलिए बार बार करना पड़ता है भैया, बार बार करने से ही स्थिर होता है। ठीक है, बहुत बढ़िया। ठीक है, इसको हटा दूं स्लाइड को। एनी अदर थिंग टू डिस्कस और? ओके, सो विल गो बैक टू वेयर वी वर। सो नाउ दैट वी हैव सीन दैट, इसको एक बार हम दोबारा देख लेते हैं, है ना? जागृति पूर्वक ही वास्तविकता को हर अवस्था और पदों में पहचाना जाता है। It is only upon awakening that each reality is recognized as belonging to a specific order and a specific plane. And in each reality, we are also realities. So we put ourselves also in some plane. Our own evaluation is very essential, right? So I belong to, or I am presently in deluded plane. ये एक बार जब
कंक्लूजन निकलता है ना, अपने में हम ये देख पाते हैं कि मैं भी तो किसी पद में हूं ही, तो मैं किस में हूं, आई एम इन डिल्यूटेड प्लेन, देन it is not acceptable to us, and then we make endeavors for moving forward towards awakening. तो पद चार होना स्पष्ट है, प्राण पद, भ्रांति पद, देव पद, दिव्य पद. It is clear that there are four planes: physico-chemical plane, delusion plane, godly plane and divine plane. ठीक है. और इसमें बोला कि पूरकता के आधार पर सभी पद प्रतिष्ठा यथास्थिति रूपी अवस्थाएं होना दृष्टव्य है. इसी तथ्य के आधार पर वस्तु कैसा है यह बोध होना आवश्यक है. तो इसको कहा, इट इज ऑन द बेसिस ऑफ देयर कॉम्प्लीमेंटेरीनेस दैट एस्टेब्लिशमेंट ऑफ ऑल यूनिट्स इन सम प्लेन एंड इन सम ऑर्डर बिकम्स क्लियर. Based on this fact, it is essential to understand the placement of each entity. ऐसा करके इसको रखा है. अभी बताइए कुछ. Any questions? Any comments? क्या करें, अभी आगे शायद बढ़े? कोई नमस्ते बोल रहा था, आई थिंक. हाँ पता जी, नहीं किसका वो था नहीं, माइक. वो दीदी हमारे घर में कोई आया था, उन्होंने अच्छा अच्छा, नमस्ते ओके मेरे को ओके, बोली थी. ठीक ठीक. अच्छा ठीक है. हाँ, ऑल गुड भैया. हाँ जी, ठीक है. अभी क्या करें, देखिए, ओनली 5 minutes आर रिमेनिंग एंड दिस इज ए लॉन्ग पैराग्राफ, सो आई डोंट थिंक के इसको हम शुरू करेंगे तो पढ़ पाएंगे पूरा. इट विल टेक एटलीस्ट हाफ एन आवर, तो वी कैन स्टॉप हियर. बताइए देव भाई. जी भैया, बेटर रहेगा. भैया 5 मिनट बच रहे हैं, तो हम्म. स्टार्ट के पैराग्राफ में जो आया था ना, हम एनिमल्स को इंस्ट्रक्शन जो देते हैं, सूचना वो ग्रहण करते हैं, यस. थोड़ा उस पार्ट को अगर अपन और ओपन कर सके ना, तो अपन एक जीव अवस्था के साथ जो इंटरेक्शन है हम्म. उसको थोड़ा और स्पष्टता बन जाएगी, अगर उस पर आप कुछ रख पाए. नहीं नहीं, ये आप बताइए आपका स्पेसिफिक क्वेश्चन क्या है. भैया मतलब किस तरह ये इंटरेक्शन कितना डिटेलिंग में होता है या कैसे होता है, और फिर इनमें भी हम फर्क देखते हैं, अलग अलग जीवों के साथ में हम डिफरेंस देखते हैं. जैसे कि जैसे जैसे गाय का एक गाय के साथ है, या कुत्ते के साथ है, या पैरट के साथ है, और तो ये सब में एक डिफरेंस भी होता है, और फिर इनमें भी बहुत वेरिएशन है. जैसे कुछ जो कुत्ते हैं बहुत ही हाई लेवल ऑफ सेंसिटिविटी उनमें मिली है कि उनके मालिक की डेथ के बाद वो खुद वहीं मर गए हैं. या एक हम्म. गाय के बारे में सुना, महर्षि रमन के जब भी प्रवचन होते थे वो पूरा टाइम उनको सुनती थी एक खिड़की के पास हम्म. में हम्म. बताना. हम्म. हम्म. ये जो डिफरेंस है जीवों में, हम्म. वो थोड़ा स्पष्ट नहीं होता. गाय भैया गाय में वो भी. ठीक है, मतलब वी कैन टेक इंटरेस्ट इन दैट, लेकिन देखिए, मतलब हम सबका ना अपने अपने क्यूरोसिटीज रहेंगी. सो व्हाट बाबा जी इज सेइंग हियर, एंड जो मेरा ध्यान जाता है वो ये है भैया कि मतलब मे बी देयर इज सम डॉग, मे बी देयर इज सम cow, which is showing heightened sensitivity. बट उन सब के साथ भी, उनके साथ में भी वी कैन नॉट हैव मीनिंगफुल डिस्कशंस, हाँ वी कैन हाँ, नॉट होल्ड ये मीनिंगफुल ये डिस्कशंस. ये तो क्लियर भैया राइट. जब. हाँ बस है ना, उनको हम क्लास, वी कैन नॉट ब्रिंग देम टू क्लासरूम एंड टीच देम द वे वी ये. डू विद ह्यूमन चिल्ड्रन. यस यस यस. नहीं भैया, जैसे है ना. ये जो हाँ शिफ्टिंग जी. शिफ्टिंग होती है ना जीव अवस्था से, ये जो गठनपूर्ण परमाणु जो हम बात कर रहे हैं जीवन, हम्म. तो हम्म. ये जो जीव अवस्था से भी जो इसमें जो ह्यूमन बॉडी में एक जो जीवन है वो जीव अवस्था मतलब एनिमल बॉडी से को एग्जिस्ट, मतलब संयुक्त रूप है में है, तो हम्म. जीव अवस्था बोल रहे हैं. और हम्म. जैसे कि वो ह्यूमन बॉडी से, तो ये जो हम्म. शिफ्टिंग है, इज इट पॉसिबल हम्म. फ्रॉम वन टू अनदर? हाँ, ठीक है. वन टू अनदर मीन्स. मतलब गाय कभी मनुष्य बन सकती है, या मनुष्य फिर कभी वापस गाय बन सकता है, जो कि हमारे परंपरा में भी इस बारे में काफी बात हुई है. तो उसके बारे में कहीं बाबा जी ने कुछ बोला हो, या आपकी अपनी कोई समझ हो? हाँ, तो एक काम करेंगे भैया, मतलब उसको ना अभी पेंडिंग में रखते हैं, क्योंकि ये काफी सारी चीजें ना, देखिए, दो चीजें हैं. एक,
मतलब बाबा जी ने कुछ चीजें बुक्स में लिखी हैं, और फिर इसके साथ में कुछ चीजें हैं जो बाबा जी ने बातचीत करते हुए कुछ साथियों को बताई भी हैं। राइट, सो मतलब वो साथ में बाबा जी ने काफी बार ऐसा भी मेरे को लगता है कि इशारा सा भी किया है कि लाइक व्हेन बुक्स आर दी मतलब जो आर दी गाइडिंग थिंग। आप मतलब बुक्स को देखो, जो भी मुझे कहना था, वट एवर आई हैड टू से, आई हैव पुट इट इन बुक्स। ठीक है, तो बातों में, संवादों में कुछ प्रश्न उनसे पूछे गए हैं, वो प्रश्न भी रहस्य से ही उनके जवाब भी आए हैं। तो मेरे को ऐसा लग रहा है कि भैया शुरू शुरू में ना हम अपने को जिस कॉन्टेक्स्ट में बाबा जी कंटेंट को रख रहे हैं ना, वैसे हम इसको अपने में, मैं तो अपने को उस पे लेकर के चल रहा हूँ भैया। अभी गाय मानव बनेगी या नहीं बनेगी, या मानव गाय बनेगा या नहीं बनेगा, तो देखो शरीर तो मानव का भी जाएगा और गाय का भी जाएगा। ठीक है, जीवन इज इमॉर्टल। ओके, सो देयर इज ए जीवन विच इज ड्राइविंग द बॉडी ऑफ ए काउ this time. Now the question is, next time, can it drive some other form, some other animal body, or maybe human body? So, well, it is right now, I do not have a solid basis. I have not understood it clearly. So I think I will stop here. मैं इसको जो है ना वो एक्सप्लेन नहीं कर पाऊंगा, मुझे खुद को भी ज्यादा स्पष्ट नहीं है। द ओनली थिंग वी कैन डू, विच ऑल ऑफ अस आर डूइंग, इज इस शरीर यात्रा में तो हम मानव ही हैं। हमको मानव जो, देर आर 8 बिलियन ह्यूमंस ऑन दिस अर्थ। ओके, सो दोज बॉडीज आर बीइंग ड्रिवन बाय जीवंस। इन सब के साथ में मीनिंगफुल डिस्कशन किया जा सकता है। बहुत ठीक बढ़िया। है, वो हम अभी नहीं कर रहे हैं। ठीक है, एंड थोड़ा गाय का क्या हो रहा है या कुत्ते का क्या हो रहा है, तो वो उन सब में मेन मुद्दा क्या है? यस, वी सी सेंसिटिविटी इन देम। दिस इज व्हाट बाबा जी हैज रिपीटेडली सेड इन बुक्स आल्सो। द मैक्सिमम एक्सप्रेशन विच वी कैन सी फ्रॉम एनिमल एंड बर्ड्स इज सेंसिटिविटी। है ना, संवेदनशीलता ही मैक्सिमम है जो हम उनमें देख सकते हैं। तो Yes. गाय में भी संवेदनशीलता का रेंज मिलेगा, कुत्ते में भी संवेदनशीलता का रेंज मिलेगा, लेकिन वो संवेदनशीलता के दायरे में ही रहेगा। है ना, ये संज्ञानीयता, रियलाइजेशन, अनुभव संपन्नता, कॉग्निसेंस, उन सब तक जा नहीं सकता। और मानव और मानव के बीच में संवाद मीनिंगफुल जो है वो अनुभव संपन्नता के रेफरेंस में ही है, ज्ञान के रेफरेंस में ही है। एक बार ये जो है हमको स्पष्ट होता है, तो फिर मेरे को लगता है कि वो अपना फोकस भी बना रहता है। बढ़िया बढ़िया बढ़िया। और एक्चुअली भैया मेरा फोकस भी जो आप बता रहे हैं उसी तरफ है। तो कई जी, बार क्या हम इस सब्जेक्ट को पढ़ाते हैं ना, हाँ तो जी, कुछ क्वेश्चन इस तरह के आते हैं। आपका ये, इसमें मैं आपका व्यू इसलिए लेता हूँ कि कई बार इस तरह से हम भी उसको एड्रेस कर पाए। जैसे आपने ठीक है, एकदम से विद इन ठीक टू है। मिनट्स आपने इसको एड्रेस कर दिया है, तो हम्म, बहुत सारे क्वेश्चंस गिर जाते हैं हम इसको इस तरह से एड्रेस करें। ठीक है। बसंत भाई वांट्स टू से समथिंग, भैया बताइए, अनम्यूट कर लीजिए। नमस्ते भैया। नमस्ते। भैया एक थोड़ा क्वेश्चन है मेरा, इससे तो मिलता हुआ नहीं है, पर इस तरीके से जैसे बार बार मेरे मन में ये आता है, जैसे हम ये बात करते हैं कि ये जीवन के ये मन, वृत्ति, चित्त, बुद्धि, ये पार्ट हैं, तो जो इनको देख रहा है अभी, हमारी जो एक्चुअल में जो हम कहते हैं कि मैं हूँ, तो ये मैं क्या, कॉन्शियस का कौन सा पार्ट है जिससे हम सब चीज देख रहे हैं? आपका क्वेश्चन समझा नहीं भैया। भैया जैसे अभी हम कहते हैं कि ये हमारे अंदर ये मान्यता है, हम्म, और इस तरह अभी हम ये थोड़ा देखते भी हैं कि हमारे, मेरे मन में ये विचार चल रहा है, तो ये जो देख रहा है, मैं जो देख रहा हूँ, तो हम्म। ये जीवन एज ए होल है या जीवन का कोई पार्ट है हाँ, तो जिसे हम इसको कह रहे भैया, हैं हाँ जी, हाँ, हाँ जी, ठीक है। तो देखिए भैया, मैं अपने में जो अभी तक सेट किया हूं, देखो मैं, आई एम ऑल्सो वर्क नहीं इन कोई भैया प्रोग्रेस, आई एम आपका ऑल्सो जो, अंडरस्टैंडिंग। तो मैं हाँ, जैसे अभी लेकर के चल रहा हूँ, बाबा जी ने हाँ, इसमें दो दो चीजों के, दो तरह से बात को रखा है। हाँ, एक है शरीर को जीवन चलाता है, तो इस सेंस में मैं या आई जो है, दैट इज जीवन। ओके, विच इज ड्राइविंग द बॉडी, विच इज लेट्स से मूविंग द बॉडी, है ना, विच इज ऑर्डरिंग द बॉडी, कमांडिंग द बॉडी, ये वाली भाषा यूज करती है। तो उसमें जीवन को मन, वृत्ति, चित्त, बुद्धि, आत्मा, इसके
संयुक्त रूप में देख सकते हैं। लेकिन साथ में बाबा जी ने एक ऐसा भी संदर्भ रखा है और काफी जगह के ऊपर स्ट्रांगली रखा है कि हमारे पास में दो तरह के साधन है। वी हैव टू टाइप्स ऑफ रिसोर्सेस, ठीक है, फिजिकल रिसोर्सेस एंड मेंटल रिसोर्सेस। तो बॉडी इज ए फिजिकल रिसोर्स एंड मन, वृत्ति, चित्त, बुद्धि ये हमारे इंटरनल रिसोर्सेस है, ठीक है, नॉन फिजिकल रिसोर्स है, ठीक है। तो ये रिसोर्स है सब किसके? अब यहां पर जो है वो आत्मा वाला शब्द आ जाता है। तो यहां पर जब हम देखेंगे तो मैं जो हूं शुद्ध रूप में आत्मा हूं, मन, वृत्ति, चित्त, बुद्धि मेरे रिसोर्सेज हैं। मेरे रिसोर्सेज कहते ही ये क्लियर हो जाता है कि मैं इनसे अलग हूं, है ना। तो मन, वृत्ति, चित्त, बुद्धि मेरे इंटरनल रिसोर्सेज है, शरीर मेरा एक्सटर्नल रिसोर्स है। मैं आत्मा हूं, आई एम, ये जो आत्मा जिसको कह रहे हैं। तो एक सेंस में हम उस तरीके से देख सकते हैं अपने को, और फिर ओवरऑल जब हम देखते हैं तो जीवन और शरीर के संयुक्त रूप में जीवन शरीर को चलाता है, वैसे देखते हैं। ये दोनों फ्रेम लेकर के भैया, मतलब जिसे कहते हैं ना, क्लियर अंडरस्टैंडिंग बनेगी। मेरा और भैया इसमें जैसे मतलब था, कभी तो हम मन के साथ, मन के उससे चलने लगते हैं, हाँ, तो अभी कभी तो हम भ्रमित है विचार ना, अभी तो भ्रमित है, हाँ, इसलिए सब कुछ हो रहा है। तो मन के साथ और इसके साथ जो चल रहा है ये पार्ट जीवन का ही है, हमें ऑफ भ्रमित कोर्स, जीवन का। हाँ, यस, 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 अच्छा, ठीक है भैया। है ना। जैसे मतलब जैसे कि मन ही है जो भटकता भी है, मन ही है जो चंचल भी है। तो ये बेसिकली क्या है कि मन वृत्ति से संचालित हो जाए, वृत्ति चित्त से संचालित हो जाए, चित्त बुद्धि से संचालित हो जाए, बुद्धि आत्मा से संचालित हो जाए, आत्म नियंत्रित हो जाए, ये ऑर्डर में सेट हो जाए तो अवेकंड जीवन है, ठीक है। अभी बुद्धि और आत्मा का तो हमको पता ही नहीं था, ठीक है। हाँ मन, वृत्ति, चित्त में भी कभी मन स्ट्रांग हो रहा है, कभी चित्त स्ट्रांग हो हाँ, रहा वही है वही ना। कह रहा हूँ। हाँ हाँ, उसी बस वो तरीके इतने से में सारा कभी गड़बड़। कभी हम इधर चले जाते हैं, कभी उधर चले यस, जाते हैं, यस, कभी इस तरफ यस। चले जाते हैं। अच्छा, ठीक है तो भैया जैसे हम कह रहे हैं मेरा मन चंचल है या जो भी, तो जो मैं जैसे वही जो भैया ने पूछा, तो मतलब मैं आत्मा बोल रही हूँ कि मेरा मन चंचल है? मतलब मैं वही बात पूछ रही हूँ जो बसंत भैया ने हाँ, पूछा तो कि तो मेरे को लगता है कि शुरू में तो मेरा मन चंचल है, अगर अपने में ये भाषा शुरू हो जाए, अपना ये ध्यान जाए कि मेरा मन भटक रहा है, तो मैं जी मन से कुछ अलग हूं अपने में, ये एक निष्कर्ष निकलता है। इसको भी एस्टेब्लिश करने में एक समय लगता है दीदी, ठीक जी है। भैया, बहुत मैं सुंदर, अपने बिल्कुल। विचारों को देख पाता हम्म हूं तो मैं विचारों से अलग हम्म हूं, ये भी अपने को हम्म एस्टेब्लिश करने में समय हम्म लगता है। मैं अपने गोल्स को रिव्यू कर पाता हूं, जैसे चित्त में लक्ष्य रहता हम्म है, गोल्स रहते हैं, है ना। हम सब ने कुछ ना कुछ वर्ल्डली गोल्स बनाए ही रहते हैं, है ना। इतना पैसा हो जाए, ऐसा गाड़ी आ जाए, ऐसा घर हो जाए, ऐसा स्टेटस पे पहुंच जाए। तो वो सब जो वर्ल्डली गोल्स हैं वो चित्त के लेवल के ऊपर जैसे नॉर्मली जो है वो बन रहे हैं। तो मैं अपने गोल्स को भी रिव्यू कर पाता हूं, तो मैं चित्त से भी कुछ अलग हूं। धीरे धीरे करके ना ये एस्टेब्लिश होता है, तो मैं अपने जीवन वाले पार्ट को भी एक एक सब कैटेगरी के रूप में मन, वृत्ति, चित्त, बुद्धि, आत्मा के रूप में देख पाता हाँ मतलब जैसे मेरे मेरे में ये चित्रण है ना, मतलब हूँ। मेरे चित्त में ये चित्रण है, तो मतलब तो मैं आत्मा हूँ जो इस चीज को देख रही हूँ, है यस, ना? यस, 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 हम्म। है ना। ऑल्दो लेकिन लाइक वो अवेकन नहीं काफी बार ये होगी, बट देखते हैं, काफी बार शुरू शुरू में ऐसा हम्म रहता है दीदी, हम लोग भी मतलब जैसे कहते हैं एज आई से, कि ऐसा नहीं कह सकते कि इससे पार पा गए हैं, कि जैसे ऐसा डिस्कशन कर रहे हैं तब तो मैं अपने चित्त को देख पा रहा हूं, लेकिन जब रोजमर्रा की जिंदगी जीने जाते हैं तो ये भूल जाते हैं, बिल्कुल है ना। बिल्कुल। तो ये जो है शुरू इनिशियल चैलेंजेस जो है वो यही रहते हैं, कि जब हम गहन चर्चा कर रहे हैं, व्हेन डीप डिस्कशंस आर हैपनिंग, तब हमको ये स्वीकार होता है, राइट। लेकिन रोजमर्रा की जिंदगी में काफी बारी फिर से जो है वो ये थोड़ा सा पीछे रह जाता है, और वो ज्यादा जो है वो जोर लगाता है।
है ना, फिर जिंदगी जो है वो वैसे भी चलनी शुरू हो जाती है, फिर बाद में कभी इन्हीं चर्चाओं में दोबारा ध्यान आता है। तो ये जो यही भटकाव भी है, इसी को भ्रम भी कह रहे जी हैं, है ना। भैया। तो वो हाँ, निष्कर्ष मतलब वो ये स्थिर हो शोध का ही जाएगा। मुद्दा है। हाँ, हाँ, शोध का अपने मुद्दा में है, शोध का बिल्कुल मुद्दा है, बिल्कुल, बिल्कुल। दैट इज व्हाट टेक्स ऑटोमेटिक टाइम एक्चुअली। उसमें भैया जैसे रिएक्शन, अभी जैसे आपने कहा बिल्कुल सही है, जैसे हम नॉर्मल लाइफ सिचुएशन में जाते हैं वहाँ ऑटोमेटिक रिस्पॉन्स आ जाते हैं। हम्म इतना मतलब या कहते हैं सजग नहीं हो पाते, वो हम्म एकदम से कहीं अभी हम बेशक सोच रहे हैं पर एकदम से गुस्सा आ जाता है। फिर हम्म बाद में हम देखते हैं हाँ यार मुझे गुस्सा नहीं आना चाहिए था उस टाइम पर आ गया, वो हम्म कैसे गया। तो इसका हम्म मतलब ये है कि वो ब्रेन एक्टिवेट हो जाता है उस टाइम, जैसे हाँ, सबकॉन्शियस बिल्कुल। अभी अभी ये जो हमने पद चक्र पढ़े ना भैया, वो चक्र में ही है। हम कभी चक्र में थोड़ा आगे हो जाते हैं, फिर हाँ चक्र कभी में पीछे पीछे हो हो जाता जाते हैं, है ना। अभी 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 24 घंटे का रिव्यू करें या 1 साल का रिव्यू करें, तो पीछे ज्यादा है, आगे तो थोड़ा थोड़ा ही बढ़ रहे हैं। है। हाँ हाँ राइट, बिल्कुल। धीरे धीरे करके वो हम्म, आगे आगे बढ़ना है उस चक्र में, और फिर किसी संक्रमण का पॉइंट आएगा, फिर ये रहेगा अब हम आगे ही रहेंगे, फिर भटकेंगे नहीं। ये जो है जर्नी। ठीक है भैया, बहुत बहुत धन्यवाद हो गया, बहुत अच्छा समझ में आया। ठीक है, बढ़िया, गुड, थैंक यू। मेरे को लग रहा है कि वी कैन क्लोज द डिस्कशन हियर टुडे, एंड वी मीट नेक्स्ट अगेन ऑन नेक्स्ट संडे 10th of March, सेम टाइम। चलो भैया, धन्यवाद भैया, बहुत बहुत नमस्ते सर। थैंक यू, थैंक यू, नमस्कार। थैंक यू, नमस्ते। नमस्कार।